Hey, so now it's our turn to take up the discussion for the question number 16 to question number 20. ये 5 क्वेश्चंस जो थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 1 मार्क क्वेश्चंस. इसमें क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 में चॉइस भी गिवन थी. सो लेट्स टेक अप द क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो हमें क्या लिखना था आंसर के अंदर? As per the current sensitivity definition, we know it is the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it. And what is the formula? That is NBA by C, where N is the number of the turns, B is the magnetic field, A is the area, and C is the restoring torque that develops per unit twist. Okay? So, जब भी हमें कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन होता है जिसमें हमें डेफिनेशन लिखनी है एंड बिकॉज करंट सेंसिटिविटी हैज़ अ फॉर्मूला एज वेल, तो मार्क्स उसी के तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखी है एग्जाम में, यू आर गोइंग टू फेच हाफ मार्क फॉर दिस एंड यू विल गेट हाफ मार्क फॉर राइटिंग द फॉर्मूला एज वेल, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 17. This is depict the field diagram of an electromagnetic wave propagating along positive x-axis with its electric field along y-axis. Let's have a look on to the graph that you need to draw here. देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. तो अगर आपको इस क्वेश्चन में एज इट्स गिवन अस हियर कि जो वेव है दैट इज मूविंग along the x-axis. So wave is propagating along the x-axis. Okay? और हमें ये भी given है कि field is along the y-axis. अगर electric field along the y-axis है तो magnetic field किस axis के along होगा? Magnetic field is going to be along the z-axis. तो आप उसको किस तरीके से draw करेंगे? You will consider this is the direction of propagation of the wave. Electric field will be along the y-axis and magnetic field will be along the z-axis as shown here. And if you will draw this diagram correctly, you will get 1 mark for this question. ये इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो यू नीड टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. आपको दोनों बनाने के बाद ही कंप्लीट 1 मार्क इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा. ओके, सो यू नीड टू ड्रॉ दिस particular graph to fetch 1 mark from this question. I hope that's clear. Moving on to the question number 18 for discussion, which is from YDSE, that's Young's double slit experiment. This question says write the conditions on path difference under which the constructive and destructive interference occur. Now this is a very simple question. जब हम interference के बारे में पढ़ते हैं तो ये सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं that is द पाथ डिफरेंस, और फिर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जब पढ़ते हैं हमें पता है इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, एंड इन द केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ. ओके, और यही इस क्वेश्चन के आंसर में भी हमें लिखना था. सो इफ यू हैव रिटन इट करेक्टली, that for constructive interference the path difference is n lambda, and for destructive interference the path difference is 2n minus 1 into lambda by 2. That is it must be the odd multiple of half of the wavelength. तो अगर आपने ये दोनों ही कंडीशन बिल्कुल सही लिखी हैं, you will get half mark for writing the condition for the constructive interference, and you will get half mark for writing the condition for the destructive interference, and this is how you will get 1 mark for this particular question. So we have the question number 19. This is the first choice of question number 19, which says plot a graph showing variation of induced EMF with the rate of change of current flowing through the coil. अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इंड्यूस्ड EMF के बीच में एंड इंड्यूस्ड EMF वर्सेस द रेट एट विच द करंट इज चेंजिंग इन द कॉइल. तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि दोनों क्वांटिटीज रिलेटेड कैसे हैं एक दूसरे के, तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल. तो यानी कि ग्राफ किस तरीके का होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ. अगर आपने ये ग्राफ
बिल्कुल सही बनाया है। हाउ यू आर रीचिंग दैट ग्राफ, तो आपको पहले ये लिखना ज़रूरी है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ किस तरीके से एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हाफ मार्क यू विल गेट फॉर राइटिंग द रिलेशन बिटवीन द टू एंड हाफ मार्क you will get for drawing this graph that is passing through the origin. This graph is going to be a straight line. Okay, so this is how you will be able to fetch 1 mark for this choice of question number 19. अगर आपने question number 19 की दूसरी choice attempt की है which says a series combination of an inductor, capacitor and resistor is connected across an AC source of EMF of peak value E0 and angular frequency omega. We need to plot a graph to show the variation of impedance of the circuit with the angular frequency. अब इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज LCR सर्किट के बारे में बताया गया है। तो एक सीरीज LCR सर्किट है। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन द इम्पीडेंस एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हम सीधा ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको इम्पीडेंस के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज ग्राफ जब हम इसका देखते हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके का आता है। एट द रेजोनेंस वी नो, जो इम्पीडेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के। तो हमें रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस क्या होगी, ये भी वहाँ पर लिखने की ज़रूरत है टू ड्रॉ दिस ग्राफ। Okay, so when you will write the formula for the impedance and when you will write that at the resonance this is going to be equal to R, you will get half mark for writing this. That is the relation of the impedance with the frequency, and then when you will plot the graph you will get half mark for this as well. Okay, so this is how you will be able to fetch 1 mark for this choice of question number 19 if you have made. Okay, now let's have a look on to the question number 20. So this is the first choice of question number 20. This question says an electron moves along the positive x direction. It enters into a region of uniform magnetic field B which is directed along the minus z direction as shown in the figure. We need to draw the shape of the trajectory followed by the electron after entering the field. Let's have a look on to the solution for this question. So आप इस क्वेश्चन के डायग्राम में इजीली देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन के अलोंग है। माइनस जेड डायरेक्शन के अलोंग ये इनटू द प्लेन भी हम इसको शो कर सकते थे। सो क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी गिवन है दैट बी इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, या फिर आप ये देख सकते हो कि वो ऑलरेडी माइनस जेड के अलोंग है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री का पाथ ड्रॉ करना है। पाथ ड्रॉ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स को फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइए दैट फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी, या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी डिस्कस कर सकते हैं और फोर्स की डायरेक्शन बताकर इसके पाथ को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस क्वेश्चन में 1 मार्क आपको तभी मिलेंगे जब आप इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो ड्रॉ करेंगे और उस ट्रेजेक्ट्री के लिए एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि वो ट्रेजेक्ट्री वैसी क्यों है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन को देखें तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर मैं बात करती हूँ चार्ज पार्टिकल की, ये चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस ई। ठीक है, v क्रॉस b जो वेलोसिटी है दैट इज इन द x डायरेक्शन, सो आई एम राइटिंग इट एज v I कैप। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द z डायरेक्शन दैट इज नेगेटिव z डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई द यूनिट वेक्टर विल बी माइनस k कैप। ठीक है, व्हेन यू विल बी फाइंडिंग इट आउट द फोर्स विल बी along the नेगेटिव y डायरेक्शन। अब हम इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन यानी कि इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन। अब मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इन दी नेगेटिव y डायरेक्शन। इट मीन्स जो थंब है वो क्या पॉइंट करता है, फोर्स, यानी कि फोर्स इज इन दी नेगेटिव y डायरेक्शन। चाहे आप इसको फोर्स को फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, चाहे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से एक्सप्लेन करें कि फोर्स जो है वो नेगेटिव y डायरेक्शन में लगेगा। जब हमने ये पता कर लिया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वी ऑल नो व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल मूव्स
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव y डायरेक्शन में, सो इट मीन्स इट इज गोइंग टू मूव इन द xy प्लेन एंड इट विल फॉलो द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में पाथ को ड्रॉ करना था, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। सो सी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में जब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी कि आप फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क फॉर दिस एंड यू विल बी गेटिंग हाफ मार्क फॉर ड्रॉइंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट चॉइस यहाँ पर डिस्कस किया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द सेकंड चॉइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. In this question we were given this straight current carrying conductor, that is AB, and this conductor is placed to this current carrying loop MNOP. So this question says a square shaped current carrying loop MNOP is placed near a straight long current carrying conductor AB as shown in the figure. The wire and the loop lie in the same plane that we already have seen. In the loop experiences a net force F towards the wire. Find the magnitude of the force on the side NO of the loop. अब अगर मैं बात करती हूँ कि ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है ये आई विल से इट्स अ न्यूमेरिकल, तो 1 मार्क में जब बच्चे को कुछ सॉल्व करने के लिए चीज़ पूछी जाती है तो जनरली उसको ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा क्वेश्चन। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया है विच वॉज आई विल से सिंपलर देन दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके की ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इट्स बेटर। अगर आपने ये पार्ट अटेम्प्ट किया है, ये सिंपल ज़रूर है, इसको सॉल्व करना आसान ज़रूर है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू इंक्लूड द स्टेप्स, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द लूप, दैट इज NO। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इस लूप के ऊपर यानी कि MP पर और NO पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर मैं MP के फोर्स की बात करती हूँ तो फोर्स निकालने के लिए मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इफ आई से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज B1 here, magnetic field will be mu naught I by 2 pi r because this is a straight current carrying conductor. The distance of this part MP is L, so हम R को replace कर देंगे L से। Current through this conductor is I1, so this is mu naught I1 upon 2 pi L. Direction is into the plane that we get from the right hand thumb rule. Current is in the upward direction, my fingers are pointing into the plane, so this is into the plane, okay. So this is for the site of MP, यानी कि MP वाले पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करती हूँ फॉर द साइट ऑफ NO, अब जो ये NO पार्ट है लूप का दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, दैट इज म्यू नॉट I by 2 pi r, बट यहाँ पर R क्या हो जाएगा 2L। डायरेक्शन विल रिमेन सेम, दैट इज इन टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, ओके। करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो my fingers are pointing into the plane, so this is cross, okay. So B1 dash we have calculated, that is mu naught I1 divided by 4 pi L, okay. If we try to calculate F1, here we are talking about the magnitude of the force acting on the wire MP will be, see, force is going to be IBL sin theta, okay. What is the angle? Angle is 90 degree between the length of the conductor and the magnetic field, so this will be I2L B1 simply. So when you will substitute the value of B1 here, you will get this is going to be the magnitude of the force. Similarly, when you will calculate F2, this will come out to be mu naught I1 I2 divided by 4 pi, okay. What is going to be the direction? For F1, direction is going to be towards the left, and for F2 the direction is going to be towards the right. So to get the net force we are going to subtract these two as they are pointing in the opposite directions, okay. So I can write F1 minus F2 is going to be equal to the net force which is already given to us in the question as F. So when you will do this, what you are going to get? F as mu naught I1 I2 by 4 pi,
Okay, so if you have already calculated the value of f, how we can calculate the value of f2? By putting the values again in this equation. That if I just mark this equation to be equation 1, when you will again substitute the value of f, you can easily calculate the value of f2 in terms of f, which will be equal to f. Okay, so we have already calculated here that f2 is equal to f. So what is the force experienced by this part of the loop, that is NO, that is equal to the net force, which is F. Okay, so you have calculated this question correctly. You are going to get the 1 mark for this question. So for calculating the magnetic field at the two parts, you will get half mark, and then when you will calculate the force finally, you will get half mark for this part as well. And this is how you will be able to fetch 1 mark for this entire question. So I hope this discussion from question number 16 to 20 is very clear to you. Now let's move on to the discussion for the question number 21.